تو ناظرین کرام اس وقت آپ سامنے علیمہ آپا کو دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت پنکھا جھل رہی ہیں اور اس وقت انتظار کر رہی ہیں کہ کب ان کا بیٹا آئے، اور ساتھ آج ناظرین کرام بہت سے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سامنے طیبہ راجہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ڈاکٹر عثمہ ہیں وہ اس وقت سامنے موجود ہیں اور یہ اس وقت ETC کورٹ کے حالات ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے ان کو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو چکے ہیں۔ علیمہ آپا نے کل بتایا تھا کہ میں پہلے اپنی کورٹ میں جاتی ہوں، پھر میری جو بہن ہے وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتی ہے، پھر میں اپنے بھائی کے کیسز بھی دیکھتی ہوں۔ اب ایک اور کیس کا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کل جب وہ مجھے بیان دے رہی ہوں گی تو یہ تیسرا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماں کی ہمت ہو۔ نورین خانم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشریف فرما ہو گئی ہیں، ساتھ ان کے ڈاکٹر عثمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس وقت ناظرین کرام کورٹ میں اس وقت حبس کا عالم ہے۔ اس وقت کورٹ کے اندر جو AC بھی ہیں وہ کام کرنا بند کر کے اتنا یہاں پر رش ہے۔ کورٹ روم کے اندر اس وقت پریمیسز کے اندر آپ سمجھ لیں کہ موبائل الاؤ نہیں ہے، جس وجہ سے یہاں پر اس طرح کی ویڈیو میں بنانا پڑ رہی ہے۔ یہ آڈیو بھی ریکارڈڈ آڈیو ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ صورتحال اس وقت کیا ہے۔ تینوں بہنیں آپ دیکھ سکتی ہیں، جس طرح سے میں بار بار یہ کہوں گا، جس طرح فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ کھڑی رہیں، اس طرح عمران خان کے ساتھ تینوں بہنیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر شاہ کو پیش کر دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر عثمہ، نورین خانم ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہیں، علیمہ آپا بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک ماں کو لیکن اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پولیس کس طرح سے ان کو ہٹا رہی ہے آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ملنے دیا جائے۔ یہ سامنے آپ دیکھیں گے تو شیر شاہ بیٹھا ہوا ہے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اب وکلا کی ریٹیلیشن بڑھتی ہے اور وکلا اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کم ملاقات کروانے دو۔ تو ساتھ میں جو اشرف صاحب ہیں، جو انویسٹیگیٹر ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کی لاتیں اس وقت آپ کے سامنے دکھ رہی ہوں گی، تو یہ بالکل علیمہ آپا کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ بالکل کوئی آئے بھی نہ۔ نورین آپا ساتھ میں کھڑی ہوئی ہیں تو یہ ان کو دھکا دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ناظرین کرام ان کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ بھائی آپ پیچھے ہو جائیں، بالکل پیچھے ہو جائیں۔ وہ خالہ ہیں ان کی، لیکن ان کو کوئی شرم حیا، مطلب کہ وہ چیز جو ہے، وہ جو مادہ ہے وہ پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ تو یہ اس وقت کورٹس کے حالات ہیں۔ پولیس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور علیمہ آپا کو وہ نہیں ملنے دے رہے۔ علیمہ آپا اس وقت ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ بڑی ہی مخصوص ریکارڈنگ ہے جو ہم نے کی ہے اور اس وقت آپ دیکھیں یہ شیر شاہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کی فیملی ان سے ملاقات کر رہی ہے۔ پہلے نہیں ملنے دیا گیا لیکن پھر وکلا نے شور شرابہ کیا، اس کے بعد ان کو ملاقات کرنے دی گئی۔ اس وقت ETC کورٹ کے حالات یہ ہے۔ ڈسچارج ہو جائے گا، میرٹ یہی ہے، اسی عدالت کا فیصلہ ہے، تو اس میں اتنی سختی کرنے کی کیا؟ وہ اصل میں اوپر سے جو ہے نا وہ سختی کورٹ کے آرڈر سر، کورٹ کے آرڈر ہم باہر بنا سکتے ہیں ویڈیو، آپ ہم بتائیں۔ عدالت تو باہر، عدالت تو باہر ہی ہے نا سر؟ نہیں یار باہر چلا یار، ٹریننگ میں بنانی میری بات تو اس وقت میں ETC کورٹ کے باہر موجود ہوں۔ اگر آپ اس وقت میرے پیچھے ہاتھ دیکھ لیں تو ETC کورٹ ہے۔ جج صاحب نے جو آرڈرز کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی میڈیا پرسن جو ہے وہ اندر موبائل نہیں لے کے جا سکتا، اور ساتھ ہی میڈیا پرسنس کے لیے انہوں نے ساتھ ہدایت کی ہے کہ آئندہ کے بعد وہ صرف کاپی اور پینسل لائیں گے، یعنی کہ 19 سینچری میں چلے جائیں آپ اور یہاں پر کوئی بھی رپورٹ نہیں کریں گے۔ میرے ہاتھے میں جو کارکن موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس وقت لوگ یہاں پر آئے جو آرگومنٹ ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو وقت بہ وقت بتاتے رہیں گے، لیکن اس وقت ناظرین کرام جو اس وقت ETC کورٹ کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی کورٹ روم کے اندر موبائلس جانے سے انہوں نے الاؤ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ موبائل نہیں لے کے جا سکتے، کاپی پین لے کر آ سکتے ہیں کورٹ کے اندر، اور ہاتھے کے باہر بھی پولیس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے موبائل چھین رہی ہے، ہم منع کر رہی ہے ویڈیو بنانے سے۔ یہ اس وقت جو جمہوریت کا عالم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کیا ہے؟ اور علیمہ آپا کو آج اپنے بچے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں جس طرح اس ملک میں آئین قانون جمہوریت کو روند کے رکھ دیا گیا ہے اور عدالتوں کو کیمرے سے ڈر لگتا ہے کہ اس میں کیا ہے، آج تو سپریم کورٹ ویڈیو لنک پوری دنیا کو دکھاتی ہے، تو ETC کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ویڈیو لنک ادھر آپ کیمرہ نہ لے کر آئیں۔ صحافیوں کو جس طرح تذلیل کیا جا رہا ہے، وکلا کو، اور پورا ایک جو ETC کورٹ کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کیس ہے اس میں آپ کل ایک بھائی کا 8 دن کا ریمانڈ اسی جج صاحب نے دے دیا اور آج اسی کی ڈسکلوجر پہ دوسرے بھائی کو رات اغوا کیا اور آج اس کو گرفتاری ڈال دی۔ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، 28 سال بعد یہ پروسیکیوشن کر رہے ہیں، اور ایسی پروسیکیوشن جس میں ہزاروں درجن لوگ ہیں وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ اس میں انلیگل سزا بھی ہو چکی ہے، اور اس سزا کے بعد آج دیکھیں کہ اس ملک میں آئین اور جمہوریت اور انصاف کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی جو بیماری کا تقدس پامال کر کے، اور اس میں آپ دیکھیں آئین کو، قانون کو روند کر جو ایک پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے پنجاب میں، اور اس طرح لوگوں کو گرفتاریاں ہوتی ہیں اور اس طرح عدالتوں کو بھی
बेतौकीर किया जा रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हम समझते हैं कि मुल्क में आइन और जमहूरियत और इंसाफ के लिए और उसकी जद्दोजहद की ज़रूरत है और हम उसके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो वकला हज़रात ने आर्गूमेंट्स किए कि एक बंदा 27 महीने बाद आपको याद आ रहा है कि जनाब उसको आपको 9 मई में डालना था, और जज साहब के अपने रिमार्क्स हैं इस पर कि जी आप पूरा लाहौर पकड़ के ही क्यों नहीं डाल देते उस पर क्या कहते हैं 780 में और उसमें क्या कहते हैं 96/23 में, तो उस पर तो उनके खुद रिमार्क्स हैं। ऐसा एक मजाक केस बन चुका है कि इसमें पुलिस ने इतनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, इतने दिहाड़ियाँ लगाई हैं कि लोगों को उठाते हैं 9 मई में डाल देते हैं, किसी आम लोगों को राह चलते को और पकड़ के पैसे लेकर छोड़ देते हैं। आप ये देखें कि एक कल शाहरेज़ खान को परसों गिरफ्तार किया, घर से उठाया, और हालांकि वो तो मतलब है कि चित्राल में था पहले, उसकी वीडियो फुटेज इंस्टाग्राम के उसकी मौजूद है। 9 मई के दिन चित्राल में है, 750 किलोमीटर दूर यहाँ से, और आज उसके दूसरे भाई को कल उठा के आज अदालत में उसके डिस्क्लोजर पे पेश कर दिया है। मैं समझता हूँ ये आइन और कानून का मजाक बना दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अच्छा राय साहब मौजूद थे, ETC के इस वक्त खाते में मौजूद हैं। मज़ीद लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे बात करते रहेंगे। हमारे सामने इस वक्त परवेज़ साहब मौजूद हैं, एक बेहतरीन आर्गूमेंट करते हैं और बड़े ज़बरदस्त और डेडिकेटेड बंदे हैं। सर मुझे थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ ताकि साया है और हम बात कर सकें। मजाक बन चुका है अदालतों का, इस वक्त मोबाइल्स अलाउ नहीं है अंदर कोर्ट्स में। उन्होंने कहा कि जी आप कोर्ट्स में मोबाइल नहीं ला सकते, मीडिया को लिखने की भी इजाज़त नहीं है, हाँ आप कॉपी पेंसिल ला सकते हैं। दूसरा आता ये कि जज साहब के तो अपने रिमार्क्स थे 96/23 में कि आप पूरे लाहौर को पकड़ के क्यों नहीं डाल देते, तो अब इस पे उनको क्या रिलीफ नहीं देनी चाहिए? ज़ाहिरी बात है रिलीफ क्या, उनको इंसाफ का तकाजा यही है कि उसको बेल देनी चाहिए। आपके इस पे क्या रिमार्क्स है प्लीज़? देखिए इसमें 2 आर्गूमेंट हुए हमारी तरफ से। एक उन्होंने वीडियो पेश की कि ये बंदा वीडियो में खड़ा है, उसके जो जवाब में हमने एक वीडियो पेश कर दी है जिसमें जासमीन राशिद साहिबा की थी इसी अदालत में, जिसमें उनको डिस्चार्ज कर दिया गया इसी बुनियाद पे कि वीडियो कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो देखी जाती है एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सस्पेक्ट अब तकरीबन 28 माह बाद एक बंदा उसका भाई कल गिरफ्तार होता है और भाई बयान दे देता है कि मेरे साथ दूसरा भाई भी था। इससे बड़ा को मजाक है अदालती सिस्टम के साथ। ये तो जजेस कोई मजिस्ट्रेट तो नहीं है, ये 19वें ग्रेड के दहशतगर्दी अदालत के जजेस हैं। इनको तो मैं कहता हूँ इस पुलिस को अंदर भेजना चाहिए, अच्छा मुल्ज़िम को नहीं, इन पुलिस एहलकारों को अंदर भेजना चाहिए। अगर इंसाफ, जिसको आप इंसाफ कहते हैं, इंसाफ करें तो इनको अंदर जाना चाहिए। मैं सर एक चीज़ हमें समझ नहीं आई कि आज अलीमा आपा को उनके बेटे से मिलने नहीं दिया गया। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर अशरफ साहब थे, मैं नाम लूँगा, तो वो तो बिल्कुल सामने डट गए खड़े होके, और अमिताभ बच्चन की तरह कद भी उनका बड़ा है तो उन्होंने कहा जी कोई आगे नहीं आएगा। नूरीन आपा को भी धक्का दिया। ये कहाँ का इंसाफ है सर? देखिए बात यह है कि पुलिस ये तो बेचारे इंस्पेक्टर है, यहाँ तो DIG रैंक के बंदों और IG को लोग धक्के मार के ये काम करवा रहे हैं। अगर इनके अफसरान जो हैं पुलिस के, अगर इनके अफसरान हिम्मत करते तो आज इनके इंस्पेक्टर्स को ये दिन ना देखना पड़ता कि वो बेचारे चौकीदार बने हुए हैं कि फोटो ना बने, माँ बाप बात ना, कौन सा ये उसामा बिन लादन या ऐमन अज़हरी को यहाँ पेश किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन एक सस्पेक्ट है और उससे पहले 109 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं सेम रोल पे, तो वो भी आज इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगा। मेरिट यही है, इसी अदालत का फैसला है, तो उसमें इतनी सख्ती करने की क्या, वो असल में ऊपर से जो है ना वो सख्ती कोर्ट के ऑर्डर, सर कोर्ट के ऑर्डर हम बाहर बना सकते हैं वीडियो, आप हम बताएं। अदालत तो बाहर, अदालत तो बाहर ही है ना सर? नहीं यार बाहर चला यार, ट्रेनिंग में बांधी मेरी बात, अदालत के अंदर ना है। कोर्ट में जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं सर, DSP साहब मेरी बात नहीं बन रही। जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि टोल्ड अस कि आप बाहर जाके मीडिया बनाएं, हम आपको मीडिया को बाहर इजाज़त देते हैं। मीडिया को उन्होंने कहा है अलाउ किया, हम मीडिया हाँ आप कर ले पता, हम बंद जाएँ पता कर ये। मोहतरम बताइएगा कि आज हमने देखा कि जो जज साहब के अपने रिमार्क्स से, जिस पे उन्होंने कहा था 96/23 में क्या आप पूरे पंजाब को ही अंदर करेंगे, क्या उस पे भी अपनी रिमार्क्स पे भी जज साहब खड़े हुए हैं? और क्या उनको, आपको लगता है कि आज आइन और कानून की बालादस्ती होगी और उनको जो शेर शाह भाई हैं उनको आज बेल मिल सकेगी? थोड़ा इस बारे में बताइएगा। दूसरा सर, आज पुलिस का हमने देखा एक रवैया बड़ा एक अनप्रेसिडेंटल था जिसमें उन्होंने साफ़ियों को निकाल दिया। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि आप मोबाइल ना लेकर आएँ, और उन्होंने पेपर्स भी अलाउ कर दिए कि आप पेपर रखें लेकिन आप अंदर ना लेकर आएँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि आप बना सकते हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आज जो कुछ भी हुआ ये मामला क्या है और इस पर आपके क्या रिमार्क्स हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी होती है अदालतों के अपने फ़ैसलों के बारे के अंदर। यहाँ पे 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो बात यह है कि
डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक वीडियो दिखाई गई थी अदालत के अंदर, और उसी बेसिस के ऊपर कि उनके वीडियो की कोई तस्दीक नहीं कराई गई थी तो उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज भी यहाँ जज साहब के आगे एक मोबाइल के ऊपर एक वीडियो दिखाई गई, कोई बयान नहीं दिखाया गया कि ये वीडियो किसने बनाई है, क्या हकीकत उसकी क्या है, और उसकी बेसिस पे इन्होंने 30 दिन का रिमांड मांगा है। सो जहाँ तक हमारी बात है, हमने तो सारी वकीला टीम ने एक ही बात की है कि ये रिमांड तो दूर की बात है, इनको इस केस से डिस्चार्ज करना चाहिए। और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि शेरशाह खान जो हैं ना वो FIR में नामजद हैं, ना सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद हैं, और सिर्फ उन्होंने कहा है कि जी 22 अगस्त यानी कि कल के दिन उनको किसी बयान की वजह से शनाख्त करके और उन्होंने को एक्यूज़ के बयान की बेसिस के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो इसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये केस देखें 9 मई 2023 से मुंसलिक है। कल इनके भाई को 23 सितंबर 2023 की एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर ना कभी उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया गया, ना उनको कभी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, और उनको 8 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। तो आज भी बात यह है कि इनको तो वो कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि जी अभी शामिल तफ्तीश किया है। फिर इस पे हमने इस बात पे भी कहा कि कोई एक्यूज़ की कोई स्टेटमेंट पे आप किसी को शामिल तफ्तीश या इस तरह केस में एक्यूज़ बनाना जो है, वो भी कोई एक्यूज़ जो पुलिस की डिटेंशन में हो, उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स मौजूद हैं कि उसकी वैल्यू नहीं होती। तो कोई तरीक़ेकार इन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ। कल की तारीख तक इनको ये मतलूब नहीं थे, किसी रिकॉर्ड में नाम नहीं है, और कल कोर्ट में ये पेश हुए हैं, अपने भाई के केस के अंदर मौजूद थे। सो और क्या बात करें। जहाँ तक दूसरी बात है, देखें बिल्कुल ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन कोर्ट होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जी अदालत के अंदर मीडिया की मौजूदगी ज़रूरी है ताकि जो हक़ाइक़ पर मबनी जो रिपोर्टिंग है वो हो सके, वरना ही तो अदालतों को यही शिकवा रहता है कि उनके बयान जो हैं या बातें अदालत के अंदर वो किसी और तरह रिपोर्ट मैनिपुलेट करके चली जाती है। तो बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया मौजूद हो और मनोअन बात जो है वो आवाम तक, पाकिस्तान की आवाम तक अदालतें खुली, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नज़र आना चाहिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो मोहतरमा कह रहे हैं कि चले जाएं बाहर, तो जबकि हम प्रीमिसेस में है भी नहीं, कोर्ट से हम बाहर आ चुके हैं। बख्शी खाना मेरे पीछे है। आपको क्या लगता है कि ये मीडिया की जो आवाज़ इस वक्त बिल्कुल बंद करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है? मेरे ख्याल में मीडिया ने भी अब देख लिया है, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की बात नहीं है। ये नहीं मैं कहूँगा कि कोई इमरान खान का भांजा हो तो उसके केस में आके कवरेज आप ज़्यादा करेंगे। मीडिया एट द एंड ऑफ द डे एक सतून है रियासत का, और मीडिया देख रहा है कि कानून और इंसाफ के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो उसको हक़ाइक़ को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ज़ाहिर है उससे मौजूदा जो हुकूमत होती है उसको तकलीफ़ होती है। समझना ये चाहिए कि कल को यही मीडिया जो है, ये अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही होगी तो आपके साथ भी खड़ा होगा। बिल्कुल। तो अगर आपका नया पाकिस्तान है तो वो नया पाकिस्तान सबके लिए बिल्कुल किसी उम्मीद है मुझे कि किसी एक पार्टी का नहीं है। सो बात बिल्कुल इतनी सी है कि मीडिया को तो आवाज़ बनना है, रिपोर्टिंग करनी है और हक़ाइक़ पे मबनी करनी चाहिए। जो नहीं करता हक़ाइक़ पे मबनी, उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, उसके खिलाफ आप एक्शन लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने इस वक्त ब्रेस्ट उमैर साहब हैं। उमैर साहब, आपने आज अदालत में तमाम हियरिंग भी सुनी, तमाम चीज़ें भी देखी आपने। आपके क्या रिमार्क्स हैं कि एक आदमी जब उनके ही रिमार्क्स सामने रख दिए जाएं और वो खुद डिस्चार्ज कर रहा हो, जबकि ऑब्जेक्शन लगा रहा हो पुलिस वालों पर कि क्या आप सारे पंजाब को लेके जाएंगे इसमें, तो सर इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं और क्या समझते हैं आज क्या इनको इस इंसाफ के ऊपर अपनी फ़ैसला करना चाहिए या नहीं? प्लीज़। देखिए, फ़ैसले तो इंसाफ के मुताबिक होने चाहिए और यही तवक्को होती है। बाकी फ़ैसला जो करना है अभी रिमांड ऑर्डर पे, वो तो जज साहब का प्रोगेटिव है, वो अभी करेंगे, सामने आ जाएगी। मगर जो सबसे अहम चीज़ है जो कल से जज साहब ने नोटिस ही नहीं की, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इत्तिमा बयान जो सितंबर 2023 का हवाला दिया जा रहा है, वो इत्तिमा बयान इंटरपोलेटेड है। यही इत्तिमा बयान जब पहले पेश किया गया था उसमें शारेज़ अजीम का कहीं नाम नहीं था। आज किस तरह से वो नाम ऐड हुआ है? ये कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है। जब कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है तो कोर्ट को 476 की कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक कोर्ट इस पर क्यों खामोश है? और मैं समझता हूँ ये पूरा सबसे बड़ा नुक्ता है जो कि प्रोसिक्यूशन को बुरी तरह से एक्सपोज करता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये किसी हद तक जाएंगे और ये जा रहे हैं, और कोर्ट ही आखिरी दिफा होती है अक्यूज़ का। और अगर आज कोर्ट अक्यूज़ का दिफा नहीं करेंगी और वो इस वजह से इम्प्लिकेट होने देंगे कि एक भाई के बाद दूसरे भाई को, क्योंकि उनकी बहन किसी को खटकती है किसी को खटकती है। नाज़रीन किराम, आखिरी जुमला बहुत ज़बरदस्त और जामिया था, और इस वक्त नाज़रीन किराम ETC के ये हालात हैं। मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे।